Now, next part is handling of prescription. Handling means you as a pharmacist, this is your duty how to handle any prescription. अगर कोई पेशेंट आपके पास आया तो आप कैसे हैंडल करेंगे? ओके, सो देयर आर फ्यू टर्म्स. First, receiving, reading and checking, collecting and weighing the materials, compounding, label and packaging. First, receiving. If the patient come to you, you should receive prescription without change your facial expression. आपने लिया, ऐसे देखा और फेस एकदम चेंज कर दिया, ये क्या होगा? पेशेंट तो ऐसे ही मर जाएंगे. कौन सी बीमारी हो गई मुझे पता नहीं. So you should not change your facial expression while receiving the prescription. वरना क्या होगा? पेशेंट क्योर होने से पहले. Okay, so it is mentioned while receiving a prescription from a patient, a pharmacist should not change his or her facial expression that gives an impression to the patient that he or she is confused or surprised. है ना? So you should not change your facial expression while receiving any prescription from the patient. First point. Second point, reading and checking each and everything which is mentioned in the prescription. Okay? After receiving the prescription, you should screen out all the parts of any prescription, whether any part is missing or not. अब आपको पता प्रिस्क्रिप्शन में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए. अगर कोई पार्ट मिसिंग है, यू शुड कंसर्न टू द डॉक्टर डायरेक्टली. या तो फोन पे बात कर लीजिए या जाकर के मिल लीजिए. यू शुड नॉट गेस एनी पार्ट फ्रॉम योर साइड. आपको गेस नहीं करना कि ये चीजें हो सकती है. ओके, सो इट इज मेंशन्ड, as we know, prescription is the slip of any hospital or any nursing home or any private practitioner and their authenticity should be checked. फर्स्ट क्या चेक करना है कि ऑथेंटिक है नहीं है. जहां से उसने मेंशन करा वो आप कैसे चेक करेंगे? एड्रेस आपको पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, अगर आप लोकल है तो आपको नाम भी पता होगा डॉक्टर का. तो यू शुड चेक ऑथेंटिसिटी, whether the prescription is written by authentic doctor, physician, dentist or not. And the pharmacist should read all the lines and words of any prescription. He should not or he must not guess any word. If there is any doubt, any confusion, the pharmacist should concern to the doctor directly through mobile phone or go to the doctor office. This is the second part. Third part, as you know, there is mentioned inscription part. That means the name and quantity of medicament. So after checking the medicament and quantity, you should collect and weigh the material. अब आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है. नाउ यू हैव शेल्फ. आपने देखा होगा ना, मेडिसिन शॉप में शेल्फ होते हैं बहुत सारे. तो यू हैव शेल्फ और ड्रायर. फ्रॉम हियर यू कैन टेक ऑल द मटेरियल्स which is mentioned in any prescription. And one more thing, after taking material from the shelf, you should keep on the left side of balance. And after measuring each material, it should be kept on the right side of the balance. इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा.
कि आपने 5 में से कौन से मटेरियल को मेजर कर लिया या मिलाया कि नहीं मिलाया। क्योंकि हो सकता है जो पाउडर है उसकी कलर सेम हो, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये वाली मटेरियल हमने लिया है या नहीं लिया। तो जब आप शेल्फ से लाएंगे वो लेफ्ट साइड में रखेंगे, आफ्टर मेजरिंग इसको कहां पर रखना है, राइट साइड में, है ना। सपोज कर लो प्रिस्क्रिप्शन में 5 मटेरियल का नाम मेंशन है, आपने शेल्फ से लिया कंटेनर, लेफ्ट साइड में रखा, 1 बाय 1 मेजर किया, उसको राइट साइड में रखना शुरू कर दिया। ओके, एंड again it is mentioned while compounding the label of every container should be checked thrice. How many times? 3 times. First, when you collected from the shelf or dryer, when the materials are measured, and next when the containers are replaced back to the shelf or dryer. आप एग्जैक्टली वही मटेरियल लिया है जो प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन है या कंफ्यूज कर रहे हैं। So it's your responsibility. You should check the label of every container thrice, 3 times. At the time of taking from the shelf, after measuring, and then when you are going to replace them. Next is compounding, labeling and packaging. Okay, after measuring all the materials, you should be compounded at a time, and compounding should be done on a clean table. कोई डस्ट मटेरियल वहां पे नहीं हो, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्टामिनेशन, और अगर कॉन्टामिनेशन हो गया तो फिर पेशेंट के साथ क्या होगा, वो तो ऑलरेडी बीमार है और आपने उसमें क्या डस्ट डाल दिया, ठीक होने के बजाय क्या हो जाएगा, वो और बीमार पड़ जाएगा। It should be done on a clean table. और जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपाउंडिंग के लिए मोटर प्रेशर यूज करनी है, उसको क्लीन साफ कर लें, आप वॉश करने के बाद ड्राई कर लें प्रॉपरली, सो दैट नो डस्ट विल बी देयर, कोई भी कंटामिनेशन पॉसिबल नहीं हो। ओके, सो ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी क्लीन एंड ड्राइड. The preparation should be prepared according to the direction of the prescriber. जो भी पेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंडिंग करनी है, अपने साइड से कुछ नहीं करनी है। You are the connecting link between the doctor and patient. You are not a prescriber. Okay? So you just follow the instruction given by the doctor or physician. And finally, the compounding material should be filled in a suitable container, and after filling you should maintain a label of any container. That is the main part of, क्योंकि जो पेशेंट है वो लेबल देख के ही बात करते हैं, उनको नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीजें है। अगर आपने उसमें मेंशन कर दिया 3 बार खानी है, वो 3 बार खाएंगे, और आपने अगर मेंशन करना, डॉक्टर ने बताया कि ये पानी के साथ खानी है, तो आपको मेंशन करनी है। अगर आपने मेंशन नहीं किया वो ऐसे ही खा लेंगे। अगर डॉक्टर ने बताया ये दूध के साथ खानी है, मिल्क के साथ, यू शुड मेंशन ईच एंड एवरीथिंग ऑन द लेबल ऑफ कंटेनर। क्या क्या चीजें हो सकती है? द कंटेनर्स आर लेबल्ड एज पर द प्रिस्क्राइबर, एंड इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट यू शुड राइट एडिशनल इंस्ट्रक्शन। आप एडिशनल इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, बट एज पर द प्रिस्क्राइबर। आपको लग रहा है कि इन्हें याद नहीं रहेगा या ये चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप एडिशनल इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, बट जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, सो फर्स्ट यू शुड मेंशन टाइप ऑफ प्रिपरेशन, वेदर इट इज इमल्शन, मिक्सचर, पाउडर, syrup. Also the quantity should be mentioned, quantity. Okay, second, पेशेंट किसके लिए है ये, उस पेशेंट का नाम, एज, सेक्स ऑन द पेशेंट, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, बिकॉज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर 1 week एंड ही माइट बी फॉरगेट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, कब से उसने स्टार्ट किया, हो सकता है वो भूल जाए,
तो यू शुड मेंशन डेट ऑफ डिस्पेंसिंग. ओके. एक्सपायरी डेट, अभी आप लोगों ने सिरप बनाया होगा, एक्सपायरी डेट मेंशन किया होगा, राइट. डायरेक्शन फॉर यूज, कितनी लेनी है, 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून और उससे भी ज्यादा. यू शुड मेंशन, फॉर एग्जांपल 1 टी स्पून थ्राइस डेली. स्टोरेज कंडीशन, कुछ मेडिसिन को हम क्या मेंशन करते हैं, स्टोर इन अ कूल प्लेस. कुछ मेडिसिन स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर. कुछ में हम क्या करते हैं, स्टोर एट रूम टेम्परेचर. तो यू शुड मेंशन द स्टोरेज कंडीशन. एंड ऑक्सिलरी और सेकेंडरी लेवल, especially in case of suspension emulsion. Shake well before use, or in case of semi-solid dosage form for external use only, like cream, ointment, gel. Name and signature of the pharmacist. Also, name and address of the pharmacy जहाँ पे वो manufacture हुआ है. Okay. And after labeling, the container should be polished to remove any fingerprint. Okay. And during delivery of preparation to the patient, the pharmacist should explain the mode of administration, कि कैसे खाना है, डायरेक्शन फॉर यूज एंड स्टोरेज, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ये है आपके हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. द लास्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज सोर्सेज ऑफ एरर. सोर्सेज ऑफ एरर, कितने तरह के सोर्सेज हैं जिसकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स आ सकते हैं. फर्स्ट सोर्स इज एब्रिविएशन, शॉर्ट टर्म यूज करते हैं ना. वन एग्जांपल आई हैव मेंशन इन दिस स्लाइड, SSKAI. दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल एब्रिविएशन, हमने अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया. इट इज द एब्रिविएशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, बट दिस इज नॉट द यूनिवर्सल, हर किसी को पता नहीं है. सो ऐसे एब्रिविएशन को हमें अवॉइड करनी चाहिए. We should avoid this type of abbreviation. First, this is the source of errors in case of prescription. Second source, name of the drug. As we know, in market there are number of drug, number of medicine available which look like same, which sound like same. For example, alfurosin and Eltroxin. Alfurosin is basically used for bacterial infection and Eltroxin is basically used for hypothyroidism. Okay, and these sound like a same. Similarly, Acidin, Epidin. Acidin for stomach acidity and Epidin for mainly दिस इज एंटीसेप्टिक. और एंटीसेप्टिक पता होगा, बताया था हमने, है ना. एसिडिन, एपिडिन, अल्थोरोसिन, एल्ट्रोक्सिन, नाम मिलता जुलता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज द टाइप ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन. थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन. स्ट्रेंथ मीन्स डोज. As we know, number of dose is available in market, especially in case of paracetamol, 700, 500, 300. कौन सी स्ट्रेंथ को, कौन सी डोज को लेनी है, it should be mentioned in prescription. So drugs are available in market in different strength, different dose. So a drug must not be dispensed if the strength is not mentioned. अगर प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ मेंशन नहीं है, यू एज ए फार्मासिस्ट शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट. यू शुड कंसर्न टू द डॉक्टर बिफोर गिविंग टू द पेशेंट. आपको डॉक्टर से कंसर्न करनी है पेशेंट को देने से पहले, राइट. एग्जाम्पल, पैरासीटामोल 500 mg शुड नॉट बी डिस्पेंस व्हेन नो स्ट्रेंथ इज मेंशन. हमें पता कि 500 कॉमन है,
लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है तो आपको नहीं देनी है, आपको डॉक्टर से पूछनी है पहले। स्ट्रेंथ, आफ्टर स्ट्रेंथ नेक्स्ट सोर्स इज डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। एज वी नो नंबर ऑफ डोजेज फॉर्म इज अवेलेबल इन मार्केट। अगर हम पैरासीटामोल की ही बात करें, ये टैबलेट के फॉर्म में भी है, सिरप भी है, सस्पेंशन भी है, एलिक्सर भी है। कौन से फॉर्मुलेशन लेनी है, इट शुड बी मेंशन इन द प्रिस्क्रिप्शन। और अगर मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से पूछना, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। नेक्स्ट, डोज। ओके, in case of high or low dose, if it is not mentioned, for example cardiac glycoside, this is a potent drug, the dose should be low, and if by mistake doctor prescribe high dose of glycoside or cardiac glycoside, you should not give in to the patient. आपको पता है कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो क्या पोटेंट है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्मॉल डोज काफी होती है। अगर डॉक्टर ने गलती से हाई डोज मेंशन कर दिया, आपको पेशेंट को देनी ही नहीं है। आपको पहले डॉक्टर से पूछनी है कि आपने प्रिस्क्राइब किया, क्या आपने सच में किया या बाय मिस्टेक आपने लिख दिया। और आपको एज ए फार्मासिस्ट बतानी है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज ए स्ट्रॉन्ग पोटेंट, यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब। आपने प्रिस्क्राइब किया, क्या रीजन है। ओके, सिमिलरली in case of sustained release, it should not take thrice or twice in a day. Sustained release already आपको दिन भर में एक ही बार लेनी है, वो 24 आवर के लिए सफिशियंट है। अगर डॉक्टर ने मेंशन कर दिया ट्वाइस या थ्राइस, सेम फिर आपको करनी पड़ेगी, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब ही है कि जो ड्रग है वो सस्टेन, धीरे धीरे रिलीज हो रही है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 24 आवर्स, समटाइम्स कभी कभी 48 आवर्स के लिए। एक डोज काफी होती है 48 आवर्स के लिए, और डॉक्टर ने लिख दिया दिन भर में 3 बार। डज इट मेक सेंस? नहीं है ना। तो यू शुड कंसर्न टू द डॉक्टर फर्स्ट। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, sometimes the instruction may be omitted or hidden, या हो सकता by mistake it is not mentioned in the prescription. Sometimes it is written partially. For example, the route of administration is not mentioned, है ना। तो वापस से सेम चीजें करनी है एज ए फार्मासिस्ट। इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? कॉम्पेटिबिलिटी समझ में आया होगा आप लोगों को। जब दो ड्रग साथ में खाते हैं, दोनों ड्रग, इट शुड बी कॉम्पेटेबल, इट शुड नॉट इफेक्ट टू द एक्शन ऑफ अदर ड्रग, एंड इफ समहाउ द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग आइदर इनहांस और डिक्रीज द ड्रग ऑफ अदर, इट शुड बी omitted, it should not given to the patient. आपने देखा होगा कभी कभी दो ड्रग साथ में डॉक्टर लेने को मना करते हैं। हो सकता है एक ड्रग दूसरे ड्रग को रिड्यूस कर दे, उसके एक्शन को, या हो सकता है टॉक्सिसिटी कॉज करे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वी शुड नॉट गिव दैट ड्रग टू द पेशेंट, especially in case of if more than 2 medicines are prescribed, then it is the duty of pharmacist to see whether their interaction will produce any harm to the patient or not. अगर दो मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब किया गया है तो you should check whether both medicines are safe for the patient or not. Okay? That's all about sources of errors in prescription. Now prescription is completed.
Now, if anyone has any doubt, you are free to ask.